السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ شاہ فارس نے اعلان کیا ہے کہ اب وہ سکندر کو شکست دینے کے لیے خود فوج لے کر جائیں گے اور اس کے لیے پورے ملک سے افواج کو جمع کیا جا رہا ہے۔ آج تمہارے باپ کو بھی وہ فرمان لا کر دیا گیا جس کے مطابق شاہ نے بابل میں تمام سرداروں کو طلب کیا ہے تاکہ سکندر کو شکست کے لیے جنگی تیاریوں کو آخری شکل دی جا سکے۔ اس لیے ہم سب بابل جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، نہ جانے کیوں میرے دل کو ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا تھا۔ بابل؟ ہم واقعی بابل جا رہے ہیں؟ ہاں میری بیٹی، کیا تو نے واقعی بابل کے بارے میں تفصیل سنی ہے؟ ہاں میں جانتی ہوں، بابل دنیا کے حسین ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے اور فارس کی آخری سرحدوں پر واقع ہے، لیکن ماں ہم کب تک وہاں چلیں گے؟ میرے سوال پر میری ماں نے ہلکا سا کہکا لگایا اور بولی، پگلی نام سن کر اتنی خوش ہو رہی ہے، لیکن بابل شہر میں تجھے دربار شاہی میں بھی حاضری دینی ہوگی۔ یہاں سارے ملک کی امراء، سردار اور خاندان شاہی کے افراد موجود ہوں گے۔ تیرے باپ کی خواہش ہے کہ اسناکیہ اس انداز میں وہاں داخل ہو کہ اس کے حسن و جمال کی روشنی سب کو سحر زدہ کر دے۔ خدا نے تجھے ایسا حسن دیا ہے جو مرد کی نگاہوں کو خیرہ کر دے۔ تیرے بدن کو اس انداز میں تراشا ہے کہ بینس کا جیتا جاگتا وجود سامنے محسوس ہوتا ہے۔ تیرے حسن میں وہ کروفر ہے کہ مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ تو میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ لیکن خیال رکھنا میری بیٹی، حسن کو ہمیشہ آرائش کی ضرورت ہوتی ہے۔ تجھے ابھی لباس پہننے کا سلیقہ سیکھنا ہے اور دربار شاہی میں نشست و برخاست پر گفتگو کے آداب کی تربیت بھی حاصل کرنی ہے۔ اس کے لیے میں نے بندوبست کر دیا ہے۔ جو بندوبست میری ماں نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ مجھے خواجہ سرا، موسال اور مشاطہ کے حوالے کر دیا گیا اور انہوں نے میرے حسن کو بے حجاب کیا تو میں خود مسحور ہو گئی۔ در حقیقت ذیشان علی، میں اپنی زندگی کے اس دور کو کبھی نہیں بھول سکتی جب میں نے خود اپنے اجنبی بدن دیکھا جو میرا نہیں، در حقیقت ادھار کا بدن تھا، تو میں اس کی دیوانی ہو گئی۔ میرا یہ جسم سنگ مرمر کی طرح شفاف اور بلوری تھا، ایک ایک انگ قدرت کی صناعی کا نمونہ تھا، اور پھر مجھے وہ سب کچھ سکھایا گیا جو ایک عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے اور جس کے بغیر اس کی زندگی حقیقی مسرتوں سے محروم رہتی ہے۔ یہاں تک کہ سفر کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور آخر کار روانگی کی صبح آ گئی۔ میں صدیوں پرانی روح بلکہ ایک زندہ وجود ایک اجنبی بدن کے ساتھ سفر کر رہی تھی، اور یہ سفر اس قدر دلکش تھا کہ میرا دل چاہتا کہ کبھی ختم نہ ہو۔ لیکن 27 دن تک ہمارا یہ قافلہ بلند پہاڑی راستوں، تنگ دروں، خطرناک گھاٹیوں اور جھلستے ہوئے ریگستانوں سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ جب سفر کے دوران دھوپ کی تمازت ناقابل برداشت ہو جاتی تو دن کو قیام کیا جاتا اور رات کو سفر۔ تاریکی کی بنا پر مشل برادر سوار ساتھ ساتھ چلتے، رہنمائی کرتے۔ ہم اس قدیم راستے پر سفر کر رہے تھے جو سائرس اعظم نے اختیار کیا تھا۔ باختر کی کارواں سرائے میں قیام کر کے ہم نے پھر آریہ جا کر دم لیا۔ سوسا، پرسی پولس اور بابل سے آنے والے قافلے ہمیں ان کارواں سراؤں میں ملتے رہے اور ان کے ذریعے ہمیں خبریں ملتی رہیں کہ موسم سرما میں آرام کرنے کے بعد اب سکندر نے پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ حملہ کر کے ایشیا میں پیش قدمی شروع کر دی، اور اب پورا فارس اس بات کا منتظر تھا کہ کب شاہ اور دارا اپنی فوجوں کے ساتھ آگے بڑھ کر سکندر کی سرکوبی کرتا ہے۔ اب تک ہم آرام سے سفر کرتے چلے جا رہے تھے، اور پھر ایک رات جب تاریکی اتنی گہری تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، ہمارے کتوں نے اچانک زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا، اور اسی کے ساتھ بہت سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں قریب آتی سنائی دیں۔ پتہ چلا کہ ڈاکوؤں نے اچانک حملہ کر دیا۔ فوراً ہی ہمارے مسلح سواروں نے عورتوں، سونے اور قیمتی سامان سے لدے ہوئے کھچروں کے گرد حفاظتی ڈیرا ڈال دیا۔ ڈاکوؤں کا حملہ بہت شدید تھا۔ اس وقت میں اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھی، میری چھوٹی بہن مجھ سے لپٹے ہوئی تھی، اور ہم نے بھیڑیوں کی طرح خوفناک
डाकुओं को आगे बढ़ते हुए देखा। उनके चेहरे बालों में ढके हुए थे और वो हमारे मुहावजों पर बढ़ बढ़ कर हमले कर रहे थे। फिर अचानक ही मैंने डाकुओं के सरदार को हिसार तोड़कर आगे बढ़ते हुए देखा। डाकुओं ने खूबसूरत कनीज़ों को गाड़ियों से घसीट कर अपने घोड़ों पर बिठाना शुरू कर दिया, लेकिन सरदार का रुख हमारी गाड़ी की तरफ था। मैंने बेबसी से इधर उधर देखा, लेकिन ऐसा कोई अमल जहन में ना आया जिससे सरदार से रिहाई हासिल कर सकती। खानख्वार शक्ल वाला सरदार तीर की तरह हमारी गाड़ी पर झपटा और दूसरे ही लम्हे मेरी कलाई उसकी आहनी गिरफ्त में थी। मेरी बहन और मेरी माँ ने अपने बालों की नोकीली पिन उसके बाजू में चुभोई, लेकिन उस जंगली पर ऐसे असर ना हुआ और वह एक ज़ोरदार कहका मारकर चिल्लाया, अरे वाह, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मुझे मिल गई है। और उसने मुझे खींचने की कोशिश की, लेकिन मेरी माँ और मेरी बहन मेरे जिस्म से लिपट गईं। उस वैशी ने एक झटके के साथ मुझे घसीट कर अपने बाजों में भर लिया, लेकिन उस जद्दोजहद में मेरे बाप को ना देख सका, जो झपट कर उसके सर पर पहुंच चुका था और उसकी तेज़ धार टैगे ने एक ही बार में डाकुओं के सरदार की गर्दन तन से जुदा कर दी। अपने सरदार को गिरते देखकर डाकुओं ने राह फरार इख्तियार की और थोड़ी ही देर में निगाहों से उजल हो गए। उसके बाद हमारा सफ़र फिर से आगे जारी हो गया। हकीकत ये थी कि डाकुओं के इस हमले में मैंने महसूस किया था कि मुझे कोई नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। जिस मंजिल की जानिब मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी और जिधर सफ़र मेरे लिए ज़रूरी था उसमें रुकावट पेश आ जाती। मुझे तो जिस मनसब के लिए तैयार किया गया था मैं उसकी तकमील करके एली गोज़ से बचना चाहती थी और उससे छीने हुए इल्म को अपने लिए मुस्तहकम करने की ख्वाहिशमंद थी। रास्ते में सिकंदर की मुसलसल पेशकदमी की खबरें मिलती रहीं। अलबत्ता मैंने किसी से पूछा कि आखिर सिकंदर की इन फतूहात का सबब क्या है, तो मुझे बताया गया कि सिकंदर पर देवताओं का साया है। यूनानियों में एक रवायत ये भी है कि देवता ज़ेवस को सिकंदर की माँ ओलिम्पियन से इश्क हो गया था और फिर एक दिन ज़ेवस सांप बनकर उसके बिस्तर पर सो गया और सिकंदर की पैदाइश उसी का नतीजा है। इस बात को सुनने के बाद उसने एतराज़ किया कि सांप को ज़ेवस देवता तो नहीं कहा जा सकता। मेरे अतालिक ने हंसकर मुझे जवाब दिया, तुम ठीक कहती हो बेटी, ये सब महज रवायतें हैं। असल बात यह है कि यूनानी फ़ौज बड़ी दलेर और फ़न हरब से वाकिफ़ है। सिकंदर की तरबियत यूनान के एक मशहूर फ़लसफ़ी अरस्तु जैसे आलम ने की है। मुझे एक बात बताइए तालिक आज़म, क्या शाहदार और उसकी फ़ौजों को इबरतनाक शिकस्त दे सकेंगे? मैंने सवाल किया। खुदा करे कि ऐसा ही हो। हालांकि शाहदारा की फ़ौजों की तादाद सिकंदर की अफवाज से बहुत ज़्यादा है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी फ़ौजें किराए की हैं। आताली के लहजे की फ़िक्रमंदी ने मुझ पर एक अजीब सा तासुर कायम किया और मैं सिकंदर के बारे में सोचती रही। मैं तुम्हें एक बात बताऊं ज़िशान अली, औरत भी अजीब चीज़ होती है। हालांकि मैं जिस मुल्क और जिस वतन से ताल्लुक़ रखती थी वो सिकंदर के दुश्मनों का देश था, लेकिन सिकंदर आज़म की बहादुरी और उसके मुतल्लक़ बयान की जाने वाली दास्तानों ने मुझे बहुत मुतासर किया और मैं असनाकिया की हसीयत से जागती आँखों उसके ख्वाब देखने लगी। वो कैसा होगा? यूनान के हुस्न और जमाल के बारे में मैंने सुन रखा था कि वहाँ खड़े खड़े नकोश के लोग हवा करते थे। दिल का शख्सियतों के मालिक, तो अपने दुश्मन के ख्वाब मुझे नज़र आने लगे, लेकिन तुम हंसोगे कि मैं उसकी दुश्मन भी नहीं थी। मैं तो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उस रूप में सफ़र कर रही थी। अरे ये तुम्हारे चेहरे के तासरात क्या बता रहे हैं? अचानक ही करोती ने कहा और मैं चौंक पड़ा। मुझे बिल्कुल यूँ लग रहा था जैसे मैं दारा की फ़ौजों के साथ सफ़र कर रहा हूँ। रास्ते का हर मंज़र मेरी निगाहों के सामने है और मैं खुद उस लश्कर का लश्करी हूँ। बस ये भी शायद करोती के तर्ज़ गुफ्तगू की खूबी थी कि इंसान उस माहौल में खो जाए। तभी मैंने चौंक कर कहा, क्या हुआ करोती, तुमने क्या महसूस किया मेरे चेहरे पर? करोती हंसने लगी और फिर बोली, मैं सदियों से जी रही हूँ ज़िशान अली, सदियों का तजर्बा मेरे वजूद में प्यूसत है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, इंसानी फितरत शायद जब से इंसान वजूद में आया यकसा रही है और उसके अंदर हुस्न परस्ती, खुद पसंदी और किसी भी चीज़ से मुतासर होने के जज्बे आत्म हसीयत रखते हैं। जब मैं सिकंदर आज़म का तज़किरा कर रही थी
तो मैंने तुम्हारे चेहरे पर रकाबत का तासर महसूस किया। तुम सिकंदर की तारीफ से खुश नहीं हुए। मैंने उसे देखा और फिर मुझे अपने आप पर हंसी आ गई। वाकई मैं थोड़ी सी जलन महसूस करने लगा था, और उसकी वजह ये थी कि करोती अब मेरी महबूबा थी, चाहे खुद फरामोशी ही की बात कह ली जाए। यानी कहाँ मैं और कहाँ वो हज़ारों साल पुरानी शख्सियत जो बेशक इंसानी जिस्म रखती थी, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी की तारीख पर गौर कर लिया जाए तो इंसान को अपने आप पर हंसी आने लगे। लाखों साल की ये औरत मौजूदा ज़िंदगी में मेरी महबूबा थी और मैं उससे बहुत मुतासर था। मेरी हंसी पर वो भी हंसने लगी। फिर बोली, मैंने कहा ना तुम आज की बात कर रहे हो। मैं लाखों सदियों से इन तमाम कैफियत से दो चार होती हुई आई हूँ। यहाँ इंसान अपने आप को तब्दील नहीं कर सकता। मैं बेचारे गौतम बंसाली पर गौर करता हूँ तो मुझे उसका दुख अपने दिल में महसूस होता है। वो भी तुम्हारे साथ लाखों सदियों से सफ़र कर रहा है, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में। वरना जैसा कि तुमने मुझे बताया कि उसके पास भी बेशुमार अलूम है और उन अलूम के ज़रिए वो क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन देख लो, इस कायनात में जब इश्क की कहानियाँ जन्म लेती हैं तो फिर ऐसे ही अनोखे वाक़यात वजूद में आते हैं। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो इंसान को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बिल्कुल मफलूज कर देता है। सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं और महबूब का तसव्वुर उसके लिए और उसकी ज़िंदगी की बुनियाद बन जाता है। अगर रास्ते में आने वाले किसी भी शख्स से नफ़रत करता है तो उसमें वो गलत नहीं, चूँकि ये भी उसकी फितरत का हिस्सा है। मैं तुमसे इत्तेफाक करती हूँ, इसमें कोई शक नहीं। चलो आगे बढ़ो। मैं सिकंदर की फ़ौजों को देखना चाहता हूँ कि सिकंदर और दारा की जंग किस तरह से वजूद में आई और इसमें क्या हुआ। करोती मेरी इस दिलचस्पी से बहुत खुशी हुई। उसने कहा कि यूँ करो कि जब मैं अपनी दास्तान दोबारा शुरू करूँ तो तुम मेरी आंखों में देखते रहो। ज़रा बराबर ये एहसास नहीं होगा कि तुम उस दौर का कोई किरदार नहीं हो। इस बार जब हम सदियों में दाखिल होंगे तो मैं तुम्हें कोई वजूद नहीं दे सकूंगी, क्योंकि मैं खुद वहाँ एक ऐसे वजूद में सफ़र कर रही हूँ जो करोती का वजूद नहीं बल्कि उधार का बदन है, जैसे जीना है। तुम्हारी बातें बेशक उलझी हुई हैं। जब ज़िंदा सदियाँ किताबी शक्ल में आएगी और लोग उसे पढ़ेंगे तो उसके बाद वाक़यात में इस तरह उलझ जाएंगे कि उनका ज़हन इन वाक़यात का कोई हल नहीं निकाल पाएगा। लेकिन मैं अपनी किताब में तुम्हारे साथ गुजरे हुए एक एक लम्हे का तज़किरा करूँगा। अपने एहसास की ही नहीं, तुम्हारे एहसास की भी सही तर्जुमानी करूँगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश तुम्हारी ज़िंदगी में पूरी हो जाए, मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई नहीं। और कभी कभी ज़िशान अली कैसा अजीब सा लगता है कि हम जिसको चाहते हैं उससे अपने साथ दूर तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो फ़ना का मकाम रखता है और वो मेरे साथ जी नहीं सकता। खैर चलो छोड़ो, आओ मेरी आँखों के रास्ते सिकंदर के दौर का सफ़र करो। उसने कहा और मेरी निगाहें उसकी निगाहों से मिली। दर हकीकत मुझे यूँ लगा जैसे मेरे अतराफ़ में नारंगी रंग बिखरता जा रहा हो, और ये भी शायद गुज़रे लम्हात का कोई तासर था। नारंगी रंग फ़िज़ा में फैलता चला गया और उसके बाद जब फ़िज़ा साफ़ हुई तो मैंने देखा कि दारा की फ़ौजें आगे का सफ़र कर रही थी, बाबुल की तरफ। बाबुल उस दौर में आलमगीर शोहरत का शहर था और ये बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ था जहाँ दुनिया के गोशे गोशे के ताजर खरीदो फ़रोख्त के लिए आते। सरसब्ज़ और खूबसूरत बागात ने शहर के हुस्न को दोबाला कर दिया था। शहर के गिर्द एक गहरी खंदक थी और ऐन दरमियान से दराए फ़रात खरामा खरामा बहता था, जिसमें बहरी जहाज़ और कश्तियाँ रवां दवां थी। ये अज़ीमुश्शान कारवां दरवाज़े से बाबल में दाखिल हुआ। मेरी आंखें उस तरह करोती की आंखों में गुम हो गई थीं और यूँ लग रहा था जैसे मैं किसी शहर में गिरफ़्तार हो गया हूँ। मेरी निगाहों के सामने शहर बाबुल था। बाबल के हुस्न ने मुझे इस तरह अपने जाल में जकड़ लिया कि मैं ये भूल गया कि मैं एक जदीद मुल्क के जदीद तरीन शहर के खूबसूरत से घर में बैठा हूँ, जो एक तहरीर निगार ज़िशान अली का घर है। बल्कि मैं उस वक़्त बाबल के हसीन मनाज़र में गुम था। ये सारे मनाज़र अपनी आंखों से देख रहा था। फिर ये काफ़िला शहर के बड़े बाज़ार में पहुंचा। यहाँ की रौनक और चहल पहल देखकर मैं दंग रह गया। मुख्तलिफ ममालिक के लोग ज़र्क बर्क पोशाकों में घूम रहे थे और उनके खूबसूरत चेहरों की दमक से मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होती गईं, यहाँ तक कि हमारी मंजिल आ गई और फिर करोती की आवाज़ उभरी। हमें क़याम के लिए जो महल दिया गया था वो शाही महल के बिल्कुल करीब था और उसकी खूबसूरत इमारत
चिकने फर्श, रंगीन और नक्शीन रेशमी पर्दे और सबसे बेहद शानदार थे। औरतों के लिए एक हिस्सा दरमियान में पर्दे डालकर मखसूस कर दिया गया। हर सिमत खुशबू से फिजा मुअत्तर थी। आईने, मेज़ें और मसहरियाँ इंतहाई सजी हुई थी, लेकिन मैं बहुत थक गई थी। मैंने अपनी माँ से अपनी थकन का तज़किरा किया तो उसने किसी और से कहा और उसने फ़ौरन ही मेरे लिए गुस्ल का इंतज़ाम कर दिया। कनीज़ों ने खुशबूदार पानी से मेरे जिस्म को गुस्ल दिया। बाबल की कनीज़ें भी अपने फ़न की माहिर थी। उन्होंने चंद ही लम्हों में मुझे ताज़ा दम कर दिया, जिस्म का मसाज करके सारी थकन दूर कर दी। फिर मशाता ने तेल लगाकर मेरे बाल संवारे और मुझे ऐसे नरम रेशमी कपड़ों में मलबूस किया गया जो मैंने वाकई पहले कभी नहीं देखे थे, ना कुरूती की हैसियत से और ना ही असनाकिया की हैसियत से। सिंगार से फारग होकर जब मैंने अपने आप को आईने में देखा तो खुद मशहूर होकर रह गई। कमबख्त गौतम बंसाली, तेरा सत्यानाश जाए, अपनी शक्ल देख बदनसीब, और फिर मुझे देख। बहरहाल मेरी माँ भी गुस्से से फारग हो गई। मेरे ज़र्क बर्क लिबास और निखरे हुए हुस्न को देखकर वो खुशी से मुस्कुरा दी। फिर बोली, तुम्हारे बाप को शाह के दरबार में हाज़िरी देना है असनाकिया, इसलिए आज रात खूब आराम करके सफ़र की थकन दूर कर लो। कल हम बाबर की सैर को चलेंगे। लेकिन ज़िशानी अली, मुझ में इंतज़ार की ताब नहीं थी। मैं ये रात आराम करके ज़ाया करने को तैयार नहीं थी। अब तक जो कुछ देखा था, जो कुछ तुमने मेरी आंखों से देखा, मुझे बताओ, क्या वो नज़रअंदाज करने के काबिल था? अपनी बात तो मैं यूँ कहूँगी कि मुझे बाबल के हुस्न ने दीवाना कर दिया और मैं ये रात बाबल की रौनकें देखने का फ़ैसला कर चुकी थी। मेरा अतालिक पहले ही बाबल के कहानों से मिलने जा चुका था और मैं जानती थी कि मेरी माँ रात को किसी और के साथ मुझे सैर की इजाज़त नहीं देगी। इसलिए मैंने उनसे बहस करना फजूल समझा। मेरी बेताबी इस दर्जे थी कि उस वक़्त कोई कुव्वत मेरा रास्ता नहीं रोक सकती थी। लेकिन मेरे लिए बाबल की सैर का सिर्फ़ एक रास्ता था। मुझे राजदारी के साथ बाबल की किसी कनीज़ का सहारा लेना होगा। मैंने अपने आप से सरगोशी की और फिर मेरी निगाह इंतखाब उस कनीज़ पर पड़ी जिसने बड़ी खूबसूरती से मेरे बदन की मालिश की थी, और अगर मैं उसे दोस्त बना लूँ तो हो सकता है वो किसी तदबीर से मुझे खुफिया तौर पर महल से बाहर ले जा सके और मैं इस शहर अजायब की रंगारंग रौनकों का नज़ारा कर सकूँ। ये कनीज़ बहुत खूबसूरत थी। उसका सडोल जिस्म शबाब की फितना सामानियों से फटा पड़ता था और मैंने उस पर हरबा आजमाया और मोहब्बत भरे अंदाज में बोली, लड़की, तेरे हाथ में जादू है और तूने जिस तरह मेरे बदन का मसाज किया है, मैं बता नहीं सकती कि मुझे इससे कितना सुकून हुआ। क्या नाम है तेरा? मुझे सबा कहते हैं शहज़ादी, कनीज़ ने खुश होकर कहा। सबा, तू भी किसी शहज़ादी की तरह हसीन है और तुझे देखकर तो मर्द दीवाने हो जाते होंगे। लेकिन एक बात मुझे बता, क्या शहज़ादे आलिया? वो मेरे एक लफ्ज़ से खुशी से फूली जा रही थी। क्या तू गुलाम पैदा हुई? मैंने सवाल किया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी की लहर पैदा हो गई। उसने कहा, नहीं शहज़ादी, मैं तो आज़ाद पैदा हुई थी, लेकिन मेरा बाप बहुत गरीब आदमी था। हम 12 बहनें थी, इसलिए उसने 2 लड़कियों को फ़रोख्त कर दिया और मुझे जिस शख्स के हाथों फ़रोख्त किया गया था वो एक बदसूरत और उम्र रसीदा आदमी था। बदबख्त जब तक ज़िंदा रहा मेरे हसीन जिस्म को कुत्ते की तरह नोचता रहा, लेकिन शुक्र है कि जल्दी मर गया और उसके बाद मुझे ग़ुलाम बना लिया गया। और मैं तुम्हें बताऊंगी कि जिस शख्स ने मुझे ग़ुलाम बनाया वो उसी हरम में रईसे ख्वाजा सरा है, लेकिन मेरे लिए वो बेहद मेहरबान आका है। उसने मुझे कभी आम कनीज़ों की तरह नहीं समझा। पिछले 5 बरस से मैं बड़े ऐशो आराम से हूँ और मेरा मालिक मुझ पर बड़ा भरोसा करता है। खुफिया कामों के लिए वो हमेशा मुझे ही शहर में भेजता है और आज रात भी मैं उसे एक काम से जाना है। ज़िशान अली से कहते हैं कि तकदीर का खेल। जिस बात के लिए मैंने उसे इतने करीब बुलाया था वो खुद ब खुद हो गया। तब मैंने राजदारी से उसे कहा, मेरा दिल भी बाबल का हुस्न देखने के लिए बेकरार है सबा, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगी? आपको शहज़ादी और सबा के दिल में खौफ बेदार हो गया। फिर उसने फ़िक्रमंद लहजे में कहा कि मैं जिस जगह जा रही हूँ वो बाब नैनवा के बाहर वाक़या है। आपको उस जगह ले जाना बहुत ख़तरनाक होगा क्योंकि रात को बाबल में चोर और राहज़न घूमते रहते हैं। मगर मैं इस लिबास में नहीं जाऊंगी, ना ही जेवर और जवाहरात पहनूंगी। तुम मुझे भी किसी कनीज़ का लिबास ला कर दे दो, भला कनीज़ों को क्या ख़तरा हो सकता है। और सुनो, इनकार ना करना, मैं तुम्हें इस काम का भारी इनाम दूंगी। ठीक है, तुम्हें ये सारी तैयारी करनी है। मैंने उससे पूछा,
बाहर तो खैर जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम महल से बाहर निकल पाएंगे। हाँ, मेरे पास खसूसी इजाज़तनामा मौजूद है। महल के दरबान और संतरी मुझे नहीं रोकेंगे, और चौंका आप मेरे साथ होंगी, इसलिए आपसे भी कुछ नहीं पूछा जाएगा, बशर्ते कि आप नकाब में हों। तो फिर ठीक है, मैंने खुश होकर कहा, और जैसे ही सब सो जाएं तो लिबास लेकर आ जाना। और निशान अली महल के फाटक पर दरबानों ने हमें रोका, लेकिन वो इजाज़तनामा जो उस खसूसी पत्थर की लोह की शक्ल में था उसके लिए काफ़ी था, और वो लोह देखते ही उन्होंने हमें बाहर जाने की इजाज़त दे दी। मैं बेहद खुश थी और मेरे पूरे बदन में हल्की हल्की लर्ज़श थी। असनाकिया की हैसियत से मेरी ज़िंदगी की इस तरह बाहर निकलने का पहला इत्तेफाक था, और चौंके मैंने असनाकिया को अपने पूरे जहन और पूरे वजूद में ज़म कर लिया था, और कुछ वक़्त के लिए भूल गई थी कि सदियों से जीने वाली को रोती असनाकिया के जिस्म में है, और यही वजह थी कि मैं असनाकिया के जिस्म में उम्र की मनाजिल तय करके बचपन से जवानी तक आई। बस ये तजर्बा था, और ये तजर्बा मेरे लिए इतना दिलकश था, दिल चाहता कि असनाकिया का अंजाम देखूं। हाँ निशान अली, ये बात बड़े दुख की है। बेशक मैं जानती हूँ कि कुछ लोग मेरे इतने करीब आए और उन्होंने मेरे साथ बड़ा वक्त गुजारा और बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन मैं ये सोचकर ही दुखी हो जाती हूँ कि आखिरकार वो बूढ़े हो जाएंगे, चले जाएंगे, मेरा साथ छोड़ देंगे, और मैं ज़िंदा रहूँगी उनकी यादों को साथ लेकर। मैं तुम्हें सच बताऊँ निशान अली, मैंने उसके लिए बड़ा एक खसूसी अमल किया है, और मैंने बहुत से जाप किए ऐसे फ़नकारों की मदद से जो ये फ़न जानते थे कि इंसानी ज़हन को किस तरह तब्दील किया जा सकता है, यानी वो जो यादों की शक्ल में इंसानी जहन में बाकी रह जाते हैं, उन्हें किस तरह अपने ज़हन के खुलियों से मिटाया जा सकता है। मुझे माफ़ करना, तुम खुद भी इस बारे में सोचोगे कि इतना अच्छा वक्त गुजारने के बाद मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, लेकिन तुम मुझे खुद बताओ, हकीकत यही है। तो मैं बता रही थी कि उस वक़्त असनाकिया की हैसियत से महल से पहली बार बाहर निकली। ज़िंदगी में इस तरह बाहर निकलने का ये एक अनोखा इत्तेफाक था। चुनाचा हम दोनों आगे चलते हुए एक कुशादा शाहराह पर आ गईं, जिसकी दोनों जानब खजूरों के दरख्त लगे थे। आसमान पर चमकते हुए चांद की रोशनी में बाबल का शहर अजायब मेरे सामने फैला हुआ था। करोती ने खुशी से सबा का बाजू दबाते हुए कहा कि बाबल की सारी रंगीनियाँ मुझे दिखा दो। वो शौक सी हंसी के साथ बोली, शहजादी क्या वाकई आप शहर की रंगीनियाँ देखेंगी? हालांकि इसमें ख़तरा बहुत है। ऐसी जगहों पर कत्लो अस्मत दरी, चोरी और राहज़नी आम होती है। मेरा दिल तो चाहा कि मैं हंसूं और उसको बताऊं कि ऐसे ख़तरात की मुझे परवाह नहीं, और मैंने उससे यही कहा, लेकिन मफ़हूम दूसरा था। मैंने उससे कहा कि सबा तो इत्मीनान रख, मुझे किसी खतरे की परवाह नहीं, तो फिर आइए, मेरा कसूर नहीं। बाबल देखने के शौक़ ने असनाकिया को यानी मुझे दीवाना बना रखा था। हम सबसे पहले बड़े मंदिर में गए। सबा ने मुझे बताया कि मजहबी रिवायत के मुताबिक हर औरत पर यह लाजम है कि वह ज़िंदगी में एक मरतबा किसी अजनबी के साथ सोए। मंदिर के पाएँ बाग में बैठी हुई औरतें इसीलिए मुंतज़िर हैं। ये बाग आप जैसी शहजादियों के घूमने के लिए नहीं। उसके बाद हम एक और बड़े बाग में पहुंचे। वहां जगह जगह दरख्तों में टंगी हुई कंदीलें रोशन थी और लोगों का एक हजूम मेले का समा पेश कर रहा था। जगह जगह तमाशे और रक्सो सरूर की महफिलें जमी थी। एक जगह बड़ा सा स्टेज बना था जिसके गिर्द 7 बजाने वाली बड़ी महारत का सबूत दे रहे थे। एक शख्स चीख चीख कर लोगों को दावत दे रहा था कि अहले बाबल आओ, मिस्र की नामूर रकासा के फ़न का तमाशा देखो। और ज़रा देर बाद एक लड़की स्टेज पर बरामद हुई और उसके रक्स में जादू था। हजूम था कि बढ़ता गया और लड़की का क़यामत खेज शबाब और हिजान खेज रक्स लोगों को बदमस्त किए दे रहा था और उनकी बेबाक दस्त दराजियों पर कहकों का शोर बुलंद हुआ। सबा ने मेरे कंधे पर थपकी दी और बोली, जल्दी चलो शहजादी, यहाँ से जल्दी आगे बढ़ो। थोड़े ही मनाज़र देखे थे मुझे अंदाज़ा हो गया कि बाबल वाकई शहर तरब है। हर जगह बेहजाबी ऐशो तरब था। खूबसूरत जोड़े बेबाकी के साथ दादे ऐश देने में मसरूफ़ थे। बाज़ारों की चहल पहल रोशनियों और तारीकियों में बिखरते हुए बदमस्त कहके और उन सब के दरमियान से गुजरते हुए मेरी नज़र एक कहाना के ख़ैमे पर पड़ी। मैंने महज तफरीह की खातर उसे हाथ दिखाने का इरादा किया। ख़ैमे में सिर्फ एक शमा रोशन थी और बूढ़ी कहना एक पुराने गालीचे पर बैठी थी और मैंने उसे चांदी का एक सिक्का दिया तो उसके झुर्रियोंदार चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने शरारतन पहले सबा को आगे धक्का दिया। कहना ने उसका हाथ देखना शुरू कर दिया।
लड़की तू कनीद है, लेकिन तू जल्दी से बाबल से दूर, बहुत दूर दराज का सफ़र करेगी और तू हमेशा मुलाज़म नहीं रहेगी। कोई औरत तुझे आज़ाद कर देगी और बस, इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं बताऊंगी। सबा का चेहरा फ़रते मसरत से दमक उठा और उसने फ़ौरन ही मुझे आगे बढ़ा दिया। मैंने हचकिचाकर अपना हाथ सामने किया तो कहना चौंक उठी। चंद लम्हे वो आंखें बंद किए ज़हरे लब बड़बड़ाती रही, फिर सरगोशी में बोली, कौन है तू? तू कौन है? तेरी लकीरें तेरी अपनी नहीं हैं, इन लकीरों में फ़र्क है और शायद तू इनको ना देख सके, लेकिन ये दोहरी लकीरें हैं। पहले कुछ लकीरें उभर आती हैं और फिर वो गुम हो जाती हैं और नई लकीरें उभर आती हैं। अरे मैंने ऐसा हैरत अंगेज़ हाथ पहले कभी नहीं देखा। ये सब क्या है? मेरा दिल तो चाहा कि मैं अपना हाथ पीछे कर लूं, लेकिन बूढ़ी कहना पर जो बीत रही थी उसमें भी मज़ा आ रहा था और मैंने इससे कहा कि तू मेरा हाथ देख। मैं क्या कहूँ तुझसे? दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग मोहब्बत करेंगे, क्या समझी? और उन्हें हरगिज़ नहीं, कोई गुलाम लड़की इतना बड़ा दर्जा हासिल नहीं कर सकती। लेकिन लकीरें झूठ नहीं बोलती। दुनिया का अजीम तरीन मर्द अपनी तलवार के ज़रिए तुझ तक रसाई हासिल करेगा और वो तुझे अपनी मलका बनाएगा। तूने सोने की किस्मत पाई है। बस अब चली जा, वरना मेरा जहनी तवाज़ुन ख़राब हो जाएगा। मैं तेरे बारे में कोई फ़ैसला कुन बात नहीं कह सकती। तू पता नहीं तू क्या है, और तेरे हाथ की लकीरों में कायनात के बहुत से राज छुपे हुए हैं। मैं इन राजों से वाकिफ़ नहीं हो सकती, लेकिन हर लकीर मुझे आवाज़ दे रही है कि मुझे पढ़, मुझे सुन, मुझे देख। मेरा दिमाग फट जाएगा। लड़की तू चली जा। और मुझे हंसी आ गई। मैंने मुस्कुराते हुए सबा को देखा तो सबा अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी और मैं उसके साथ बाहर निकल आई तो सबा ने सर्द लहजे में कहा, यकीन करो शहज़ादी, तुमने मुझे जो इज़्ज़त और अहमियत दी है, मैं समझती हूँ कि ये मेरी बुलंद किस्मत का एक अमल है और मैं तुम्हें देखकर खुद भी अंदाज़ा लगाती हूँ कि तुम वाकई एक अजीबो गरीब शख्सियत हो, कहीं से समझ में ना आने वाली। चल आगे चल, बेकार बातें मत कर, मैंने उससे कहा और हम फ़रात का पुल पार करके एक निस्बतन वीरान इलाके में दाखिल हो गए। सबा बोली, सड़क के दरमियान चलो, तारीक दराजों में चोर और राहदन अचानक दबोच लेते हैं। मैं मुस्कुराकर खामोश हो गई। तेज़ कदम उठाते हुए हम आगे बढ़ते रहे और मैंने उससे पूछा कि ये कौन सी जगह है जहाँ हमें जाना है? असूबा है उस जगह का नाम, लेकिन वो जगह बहुत ख़तरनाक है। मैं अपने साथ अमूमन किसी मुहाफ़िज़ को लेकर वहाँ जाती थी। ये सामान मुझे जहाँ पहुँचाना है वो बहुत ही अजीब जगह है। उसने बाजू में लटकी हुई छोटी सी टोकरी को संभालते हुए कहा। मैं शुरू से ही हैरान थी कि न जाने इसमें क्या रखा है। वो जो इतनी एहतियात से उसे संभाले हुए थी, कहने लगी, इस राय में तरह तरह के लोग जमा रहते हैं, फनकार, पहलवान, सिपाही, शमशीर जन और ख़तरनाक किस्म के चोर और डाकू, ये सब का अड्डा है। असूबा में और भी बहुत से काम होते हैं और वहाँ एक ख़ास औरत बड़ी अहमियत की हामिल है और सही मायनों में उसका नाम असूबा है। आप जानती हैं कि हरम की ख़वातीन के लिए अपनी पर्दादारी में बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन ज़रूरी है। और असूबा आफत की परकाला है। वो ख़तरनाक जहरों और तीरे बेहदफ दवाओं की भी माहिर है और आज भी इसी सिलसिले में जा रही हूँ। हम लोग असूबा पहुँच गए और मैंने उस औरत को देखा जो एक बदरू मालूम होती थी, जिसे देखकर मुझे ख़तरे का एहसास हुआ और मैं ये सोच रही थी कि मैंने यहाँ आकर गलती की। उसी सराय में बाबल का मशहूर शराब खाना भी था। फाटक से अंदर दाखिल होते ही कहकों का शोरोगुल सुनाई देने लगा। सबा मुझे मुख्तलिफ कमरों से गुजार कर एक दरमियानी कमरे में ले आई जो काफ़ी कुशादा था। दीवारों में तेल से जलने वाले लैंप लगे थे। हर समत बिछी हुई मेज़ों के गिर्द अजीबोगरीब कोर दानों पर मुख्तलिफ किस्म के मर्द और औरतें बैठी हुई थी। शराब का दौर चल रहा था। कहीं शतरंज और चौसर का खेल जारी था, कहीं पच्चीसी का। सबा इन तमाम बातों से बेपरवाह कमरे के आखिर में रखी हुई मेज़ के गिर्द बैठी उस औरत के पास जा बैठी जिसका नाम असूबा था। बड़े सरदार ने तुम्हें सलाम भेजा है असूबा। सबा ने झुक कर उसे ताज़ीम दी और मैंने भी उसकी तकलीद की। बड़े सरदार को मेरा भी सलाम कहना। और ये तो अपने साथ आज किसे ले आई? असूबा की निगाहें पूरी तरह मेरे जिस्म पर गड़ गईं। ये नई कनीज़ है, बड़े सरदार ने कहा, और उसे यहाँ का रास्ता दिखा दूँ। सबा ने बड़ी एहतियात से बंद टोकरी मेरी समत बढ़ाई और सरगोशी में कहा, ढक्कन ना खोलना। और फिर मैं आगे बढ़ी और असूबा को वो लोह दिखाई।
हाँ सब मैं सब कुछ पहचानती हूँ। असुबा मकार मुस्कुराहट के साथ बोली, चल ये जगह देख और इस पर अपना नाम लिख दे और ये बटवा ले जा। उसने एक मोमी तख्ती बढ़ाई जिस पर सबा ने बेमुश्किल अपना नाम लिखा और वो चमड़े की थैली असुबा के हाथ से ले ली जिसे उसने अपने हाथ में पकड़कर ऊंचा उठाया हुआ था। अब कुछ देर बैठ आराम कर ले और शराब से अपनी थकन दूर कर। असुबा बोली, नहीं तुम्हारी मेहरबानी है, हमें जल्दी वापस पहुंचना है, हमें यही हिदायत की गई है। सबा ने वो चमड़े की थैली अपने लिबास में छुपाते हुए कहा। न जाने क्यों मुझे कुछ अजीब सा लगा, चुनाचा मैंने अपनी बातन की निगाहें उस थैली पर जमा दी और मुझे पता चल गया कि उसके अंदर एक शीशी है जिसमें एक बहुत ही खौफनाक किस्म का जहर मौजूद है। बहर तौर असुबा उठकर चली गई और सबा वापसी के लिए मुड़ी तो मैंने सबा का बाजू पकड़कर उसे रोका और कहा,